ایک زمانے میں فلورنس نام کے شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور قابل لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا جانی۔ اس نے اپنی امی کو تبھی کھو دیا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ بہت برسوں کے بعد اس کے ابا نے دوبارہ شادی کی اور اس کی سوتیلی ماں ہی اس کا خیال رکھتی تھی جس کا نام تھا روپیلا۔ وہ ایک بدزن عورت تھی اور جانی اور اس کے ابا کو تباہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ لڑکا بالکل بھی پسند نہیں ہے اور مجھے اس لڑکے سے چھٹکارا پانا ہی ہوگا۔ میں ایسی کیا ترکیب کروں کہ وہ خود بخود گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ میں اسے کھانا بھی نہیں دیتی، اس سے اچھا رویہ بھی نہیں کرتی، لیکن تب بھی وہ یہیں رہتا ہے۔ ایک وقت جانی ٹیبل کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ روٹی کتنی سخت ہے، میں اسے پانی میں بھگوتا ہوں تاکہ نرم ہو جائے پھر میں اسے کھا سکوں۔ جب وہ آبشار کے پاس سخت روٹی کو بھگونے کے لیے گیا تو وہاں سے ایک ضعیف آدمی گزر رہا تھا جو بہت ہی کمزور دکھ رہا تھا۔ میں بہت بھوکا ہوں، چھوٹے لڑکے کیا تم ایک روٹی کا ٹکڑا مجھے دو گے؟ ارے جناب، یہ بہت سخت ہے، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اور اس ضعیف شخص نے روٹی کھا لی۔ شکریہ بیٹا، تم نے بہت اچھا کام کیا، تم انعام کے حقدار ہو۔ تمہیں معلوم ہو میں ایک فقیر نہیں ہوں، میں ایک طاقتور جادوگر ہوں۔ بہت طاقتور جادوگر ہوں۔ میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کروں گا۔ جانی نے اپنا سر کھجایا اور غور کرنے لگا اسے کیا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا اور یہ 3 میری خواہشیں ہیں۔ پہلی، جب میری سوتیلی امی مجھے دیکھیں تب وہ ہنسیں اور ہنستی رہیں اور ہنستی ہی رہیں۔ دوسری، مجھے ایک گیند چاہیے، جب میں اسے اچھالوں تو اس کا اچھلنا بند ہی نہ ہو۔ اور تیسری، ایک جادوئی بانسری جو لوگوں کو رقص کرا سکے۔ تمہاری خواہشیں پوری ہوں گی، یہ لو اچھلنے والی گیند اور جادوئی بانسری۔ وہ شخص غائب ہو گیا اور جانی سیدھا اپنے گھر گیا، اپنی سوتیلی ماں کے قریب۔ امی، میں نے ابھی اپنی روٹی مکمل کر لی۔ بے حد او میری ہنسی رک ہی نہیں رہی ہے۔ اور وہ جتنا زیادہ لڑکے کو دیکھتی وہ اتنا زیادہ ہنستی۔ امی، آپ ہنس کیوں رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ او خدا، پھر اسے یاد آیا کہ اس کی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں، کل ملاقات ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی لڑکا اپنے کمرے کی جانب گیا اس کی ہنسی رک گئی۔ یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ میری ہنسی رک ہی نہیں رہی ہے۔ اب ہر دفعہ جب لڑکا اپنی سوتیلی امی سے ملاقات کو آتا تو وہ ہنسنے لگتی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی، نہ وہ کھانا بنا پاتی، نہ وہ گھر کا خیال رکھ پاتی اور نہ ہی سو پاتی، بس ہنستی رہتی اور بس ہنستی ہی رہتی۔ کوئی تو ہوگا جو میری مدد کر پائے گا، ایسے حال میں تو میں زندہ ہی نہیں رہ پاؤں گی۔ اس نے کئی حکیموں کو دکھایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ حکیموں نے مجھے دوائیاں تو دی ہیں لیکن ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اب آخر میری مدد کون کرے گا؟ میں جانتی ہوں، اب میں پہاڑی پر جاؤں گی۔ لوگ کہتے ہیں وہاں ایک جادوگر رہتا ہے اور وہ بہت ہی ہوشیار ہے۔ اس لیے اگلے دن وہ جادوگر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ تم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے سوتیلے بیٹے نے۔ اس نے تم پر کوئی طلسمی الفاظ پھونکے ہیں، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ اور جادوگر پھر آبشار کے پاس گیا جہاں اس نے لڑکے کو روٹی بھگوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیسے ہو لڑکے؟ کون ہو تم؟ میں تمہاری سوتیلی امی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جلدی بتاؤ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ گزشتہ دنوں تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تم کیا کر رہے تھے؟ مجھے بتاؤ۔
आप बहुत सवाल कर रहे हो, मैं थक गया हूँ। आपको ये गेंद नजर आ रही है? अच्छा, क्यों? फिर लड़के ने उस गेंद को उछाल दिया और गेंद उछलती रही। अगर आप गेंद पकड़कर थाम लें तो मैं आपको सब हकीकत बताऊंगा। जादूगर ने गेंद का पूरे मैदानों में पीछा किया और गेंद को तलाश करते हुए वो खो गया। जादूगर को कुछ मालूम नहीं हुआ, लिहाजा सौतेली अम्मी ने जॉनी को बादशाह के पास ले जाने का फैसला किया। इस लड़के के खिलाफ क्या इल्जाम है? ये एक जादूगर है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं जब कभी भी इसकी तरफ देखती हूँ मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाती। मुझे नजर आ रहा है तुम मुश्किल से बात कर पा रही हो। खैर, मैं जल्दी में हूँ। लड़के, तुम्हें कैद खाने जाना होगा। जैसा आप चाहें, लेकिन कैद खाने जाने से पहले मैं बांसुरी बजाना चाहता हूँ। जितना चाहो बजाओ। और जैसे ही जॉनी ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो उसकी सौतेली अम्मी, दरबार के अफराद, बादशाह सभी ऐसे नाचने और कूदने लगे जैसे उनके पैरों में कोई स्प्रिंग लगी हो। खुदाया, मैं तो थक गई हूँ। मैं ये और नहीं कर सकता। खुदा के लिए रहम करो। बादशाह अगर मुझे वादा करे कि मुझे आजाद कर देंगे और मुझे मेरी सौतेली अम्मी से दूर रखेंगे, तभी मैं बांसुरी बजाना बंद करूंगा। मैं वादा करता हूँ। जैसे ही लड़के ने बांसुरी बजाना बंद किया, यकबयक सभी ने नाचना भी बंद कर दिया। और रही तुम्हारी सौतेली अम्मी की बात, तो उसे दूर शहर में जाना होगा, जहाँ से वो वापस नहीं आएगी, तुम्हें परेशान करने फिर से कभी नहीं। अरे शुक्रिया। और बस इसके बाद मासूम जॉनी आराम से रहने लगा, सुकून के साथ। जादुई बारासिंगा। एक जमाने में दो भाई बहन थे। वो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। उनकी मां गुजर चुकी थी और उनके वालिद ने दूसरी शादी की थी। वो मां बच्चों से बहुत ही बेदर्दी से पेश आती थी। एक दिन भाई ने अपनी बहन से कहा, ओ प्यारी बहना, सुनो, हमारी सौतेली माँ रात दिन सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं देती है। बाहर निकलने की बार बार धमकी देती है। हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे, हम खुली दुनिया में निकल चलते हैं। लिहाजा वो दोनों बाहर निकल पड़े और शाम तक बेवजह ही इधर उधर घूमते रहे। आखिरकार वो जंगल में दाखिल हुए और वहाँ बारिश होने लगी। भूख और प्यास से दोनों हैरान हो गए। आखिरकार वो एक खोखले से पेड़ में सुबह तक सोते रहे। जैसे ही सुबह हुई वो जागे और जगह छोड़कर पानी की तलाश के लिए इधर उधर घूमने लगे। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे रास्ते में कहीं नदी या झरना आए तो अच्छा होगा। रुको, मुझे लगता है मैंने पानी की आवाज सुनी है। फिर उसने अपनी बहन का हाथ हाथों में थाम लिया और पानी की तलाश में सफर करने लगा। उनकी सौतेली अम्मी डायन थी। उसने खामोशी के साथ उनका पीछा किया। उसने जंगल के सभी नदी झरने जादुई कर दिए। भाई बहन दोनों झरने के करीब आए और बहन ने झरने का धीरे से बोलना सुना, जो कोई मेरा पानी पिएगा वो शेर बन जाएगा। ठहरो भाई ठहरो, ये पानी हरगिज न पियो, वरना तुम जंगली जानवर बन जाओगे और मुझे खा जाओगे। भाई प्यासा था, लेकिन उसने बहन के कहने पर अपनी प्यास की ख्वाहिश को खत्म किया और कहा, ठीक है मेरी प्यारी बहना, मैं अगले झरने के आने तक रुक सकता हूँ। ऐसे ही वो आगे वाले झरने तक गए। वो झरने के करीब पहुँचे। उन्हें फिर आहिस्ता से बोलने की आवाज आई, जिसने मेरा पानी पिया वो भेड़िया बन जाएगा। भाई मैं गुजारिश करती हूँ, तुम इस झरने का पानी हरगिज न पियो, तुम भेड़िया बन जाओगे और मुझे खा जाओगे। फिर से उसने अपने दिल पर काबू किया और उसने वादा किया कि वो पानी नहीं पिएगा। उसने ये भी कहा, अब मेरी प्यास में बहुत इजाफा हो चुका है, इसलिए मुझे अगले झरने पर पानी पीना ही पड़ेगा। पास ही एक छोटा सा झरना रवा था, लेकिन वहाँ भी बोलने वाला पानी था। छोटी बहन ने वो अल्फाज सुने,
जो मेरा पानी पिएगा वो बारहसिंगा बन जाएगा। मेरे भाई पानी मत पियो। वो ये कहने ही वाली थी कि उसे जरा देर हो गई, क्योंकि उसका भाई पहले ही झुककर पानी पीने लगा था। और फिर क्या था, देखते ही देखते वो एक बछड़ी में तब्दील हो गया। लेकिन वो बछड़ा रवाना नहीं हुआ, बल्कि बहन के पास ही रुका रहा। आराम से खड़े रहो बछड़े, डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। फिर बहन ने सोने की एक पट्टी खोली और पट्टी बछड़े के गले में आहिस्ता से बांध दी। फिर उसने कुछ मुलायम हरी घास के रेशे बांधकर प्यारी सी डोरी बना दी। उसने वो डोरी बछड़े के सुनहरे पट्टी में बांधी और उसके बाद उसे थामकर जंगल के घनेरे हिस्से में चली गई। कुछ वक्त इधर उधर घूमने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। ये झोपड़ी दोनों के लिए एक अच्छी पनाहगाह साबित हो सकती है। लिहाजा वो बछड़े को लेकर अंदर चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। रोजाना सुबह बहन खुद के लिए बेर इकट्ठा करने जाती और ताजी घास वो बछड़े के लिए ले जाती और बछड़ा उसके हाथों से घास खाता। उसके बाद वो बाहर जाकर खेलते। इसी तरह उन्होंने कुछ बरस जंगल में गुजार दिए। अब छोटी सी बहन खूबसूरत जवान लड़की में और मासूम बछड़ा जवान बारहसिंगे में तब्दील हो गए थे। एक बार की बात है, शहजादा शिकार करने के लिए अपने अजीजों के हमरा आया। फिर वो बजने वाले सींग, शिकारी कुत्तों की आवाजें, शिकारियों के चिल्लाने की सदाएं पूरे जंगल में भर गई। ये आवाज बारहसिंगा ने भी सुनी। वो अपनी बहन से गुजारिश करने लगा, मैं भी बाहर जाकर देखूं। बहन ने कहा, देखो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन शाम को जब तुम घर वापस लौटोगे बाजी मुझे अंदर आने दो, कहना ना भूलना। जल्दी ही शिकारी की नजर सुनहरा पट्टा बांधे बारहसिंगा पर पड़ी और उसने इशारा करके शहजादे को दिखाया। उन्होंने उसका शिकार करने का सोचा। उन्होंने उसका बेहद फुर्ती से पीछा किया, लेकिन बारहसिंगा ज्यादा फुर्तीला और होशियार था। वो उनके हाथ ही नहीं आया। शिकारियों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। वो अपने घर की जानिब चल पड़ा, लेकिन शहजादा और एक शिकारी उसका पीछा कर रहे थे। जरा दूरी बनाकर वो उसके पीछे थे। उस बारहसिंगा को दरवाजे के करीब जाकर आवाजें करते हुए देखकर उन्हें ताज्जुब हुआ। उन्होंने ये भी सुना, आपा मुझे अंदर आने दो। वो दरवाजा थोड़ा सा खुला और फौरन बंद हो गया। लेकिन शिकारियों ने जितना भी देखा उसने उनकी दिलचस्पी में इजाफा किया। शहजादे के पास पहुंचा और उसने जो देखा वो तमाम हाल शहजादे को बता दिया। हमें इस रात से पर्दा उठाना ही चाहिए। दूसरे रोज सुबह ही वो शिकारी शहजादे को लेकर झोपड़ी के करीब पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। फिर शहजादा अकेला ही अंदर दाखिल हुआ। उसके सामने बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो हैरान हो गया। वो डरी हुई दिख रही थी। थोड़ी बात होने पर उसने उसका हाथ हाथों में लेकर कहा, तुम मेरे साथ मेरी बेगम बनकर मेरे महल में आओगी? क्यों नहीं, बिल्कुल खुशी से, लेकिन मैं इस प्यारे बारहसिंगे को नहीं छोड़ सकती। वो भी मेरे हमरा आएगा। वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। वो भी बात ही कर रहे थे कि बारहसिंगा खड़ा हो गया। वो खुश नजर आ रहा था। कुछ रोज बाद ही बड़ी धूमधाम से शादी हुई। यहाँ उन्हें खुश देखकर उनकी बुरी सौतेली अम्मी, जिसने उन्हें पहले बद्दुआ दी थी, उसके मन में बुराई पैदा हुई। उन्हें बर्बाद करने का फैसला किया। उसने एक दाई की सूरत इख्तियार की। वो उसी वक्त महल में दाखिल हुई। मलका एक प्यारी सी औलाद को पैदा कर रही थी। बादशाह ने फौरन ही बच्चे की खातिर उसे रख लिया। उसके बाद उसने एक दिन मलका को हमाम में कैद कर दिया और बच्चे को झूले से उठाकर बालकनी से नीचे ही फेंकने जा रही थी कि इतने में बारहसिंगा अपने भांजे को बचाने के लिए वहाँ आ पहुँचा। उसने बच्चे को फौरन बचाया कि उसी वक्त बादशाह भी मलका के कमरे में आ पहुँचे और उन्होंने देखा कि बारहसिंगा सामने बच्चे को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। अगले ही लम्हे उस डायन को कैद किया गया। मलका ने बादशाह को बताया कि किस तरह से उनकी सौतेली अम्मी ने उन्हें परेशान किया था। बादशाह को बेहद गुस्सा आया। डायन को उम्र कैद की सजा दी। सौतेली अम्मी को उसकी भूल का एहसास हुआ और उसने मलका के भाई पर जो बारहसिंगा बना हुआ था उसकी बद्दुआ दी थी, उसे उससे आजाद किया और फौरन ही उनके सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़का हाजिर हुआ और इस तरह से वो तमाम खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। तिलिस्माती टोपी। एक वक्त की बात है,
ایک دیہات میں چندن نام کا ایک جادوگر رہتا تھا اور اس کا جادو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ ایک روز چندن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب وہ جادو کا تماشا کرنے باہر نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے گگن، آج میری طبیعت بے حد ناساز ہے، آج میں تماشا نہیں کر پاؤں گا، کیا تم میری جادوئی ٹوپی لے جا کر تماشا کر پاؤ گے؟ جی ابا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں جادو دکھانے جاؤں گا۔ لیکن ذرا دھیان رہے، یہ ایک جادوئی ٹوپی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ جی ابا۔ گگن جادوئی ٹوپی لے کر دیہات کی جانب روانہ ہوا اور وہاں اس نے بڑا اچھا تماشا کیا۔ کچھ وقت بعد اسے بھوک کی شدت محسوس ہوئی، لہٰذا وہ پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ گگن نے ابھی اپنا کھانا کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک معصوم سی چڑیا آئی اور اپنی چونچ میں اس کی جادوئی ٹوپی کو دبا کر اڑنے لگی۔ گگن چڑیا کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا اور وہ جنگل کے اندر داخل ہو گیا۔ او چڑیا، میری ٹوپی واپس دو۔ چڑیا اتنی وزنی ٹوپی کو اپنی چونچ میں دبائے اڑتی رہی، لیکن ذرا دیر بعد وہ اس کی چونچ سے نکل گئی اور ایک ہاتھی کے سر پر جا کر پہن گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھی ایک مور میں تبدیل ہو گیا اور رقص کرنے لگا۔ ارے بھائی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں اتنا ہلکا کیسے ہو گیا؟ اور یہ میری سونڈ کہاں گئی؟ اور میرے پر؟ ارے بھائی، کیا میں مور بن گیا ہوں؟ ارے ایسا کیسے ہو گیا؟ چڑیا تو یہ منظر دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ ویسے اسے یہ خیال تھا کہ یہ کوئی عام ٹوپی نہیں ہے بلکہ بہت ہی خاص ہے۔ چڑیا نے خواہش کی کہ وہ ہاتھی کی مدد کرے اور وہ اس کے قریب گئی۔ ہاتھی بابا، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے واقعی نہیں معلوم تھا یہ جادوئی ٹوپی ہے۔ شاید اس ٹوپی کا حاکم کوئی جادوگر ہے۔ گگن بھی وہاں پر پہنچ گیا اور خاموشی کے ساتھ دونوں کی بات سننے لگا۔ ارے مہربانی کر کے جادوگر کو بلاؤ اور مجھے واپس سے ہاتھی بناؤ۔ گگن وہاں پر کھڑا ہوا اور اس نے ان کی تمام باتیں سنی اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ ارے فکر مت کرو، لاؤ میری ٹوپی میرے پاس لاؤ، میں ابھی تمہیں تمہاری ہی شکل و صورت میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ گگن نے ٹوپی پہن کر جادوئی الفاظ کہے اور ہاتھی کو فوراً اس کی اصلی شکل و صورت میں بدل دیا اور معصوم چڑیا کے لیے پیارا سا گھونسلہ بھی تیار کر دیا۔ اچھا، اب میں روانہ ہوتا ہوں، رات جو ہونے والی ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں جادوگر، تم واقعی بہت اچھے ہو، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ کیا تم لوگ جادو دکھانے میں میرے ساتھ ساتھ رہو گے؟ ارے ہاں، کیوں نہیں؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ضرور چلیں گے۔ جادوئی تالاب۔ ایک زمانے میں ایک بڑے ملک کے بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کے ہونے سے وہ بہت خوش تھا، لیکن ساتھ ہی وہ پریشان بھی تھا کیونکہ شہزادہ پیدائش سے ہی بیمار تھا اور اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی اسے ٹھیک نہیں کر سکا۔ ایک رات بادشاہ نے آنکھ کے سامنے دعا کی، او میرے خدا، اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں اور جلد ہی میں تمام عوام کو چھوڑ کر جنت میں رہنے آؤں گا۔ میرے بعد ان کی حفاظت کرنے والا میرے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں۔ مہربانی کر کے مجھے بتائیے وہ ٹھیک کیسے ہوگا۔ بادشاہ نے جواب کا انتظار کیا اور پھر لگاتار جل رہی معجزہ والی آگ میں سے آواز آئی، جب دنیا کے آخری چھور کے جادوئی تالاب سے شہزادہ پانی پیے گا اسی وقت وہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن بادشاہ بہت ضعیف تھا اور وہ خود سفر نہیں کر سکتا تھا اور شہزادہ بیمار تھا، اس لیے اس نے اپنی سلطنت میں منادی کروائی کہ جو کوئی دنیا کے آخری چھور کے جادوئی تالاب سے پانی لا کر دے گا اسے بادشاہ بہت انعام دے گا۔ اس کے بعد بہت سے دلیر لوگوں نے
कोशिश करके देखा, लेकिन वो तालाब किसी को हासिल ना हुआ। बादशाह की सल्तनत में दूर पहाड़ों में एक गरीब किसान और उसकी बीवी, उसके 2 लड़के और एक छोटी बेटी थी। एक दिन उसके बड़े बेटे ने कहा, वालिद साहब, हम दोनों भाई उस इलाज वाले पानी की तलाश करते हैं। हम 14वीं से पहले वापस आएंगे और फिर फसल काटने में आपकी मदद करेंगे। हमने आखिर छोर नहीं देखा। दूसरे बेटे को भी उसके साथ जाना था, लेकिन किसान को अपने बेटों की फिक्र हो रही थी। फिर किसान की बीवी ने कहा, हमें अपने बादशाह और उसकी शहजादी की मदद करनी चाहिए। फिर किसान ने अपने बेटों को दुआ दी और दोनों बेटे अपनी सफर पर निकल पड़े। उन्होंने बहुत सफर किया, बहुत से तालाब भी मिले, लेकिन जहाँ आसमान पानी से जुड़कर शुरू होता है, ऐसा तालाब नहीं मिला। उन्हें एहसास हुआ वालिद की मदद के लिए वापस जाना चाहिए। देखो छोटे भाई, आखिर छोर के आखिरी तालाब को हम नहीं तलाश पाए। ऐसा करते हैं, हर तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी जमा करते हैं और ऐसा करने से हमें इनाम भी मिल जाएगा। और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने बादशाह को बताया कि ये पानी जादुई तालाब का है। और जब वो पानी शहजादी को दिया गया तब कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बीमार का बीमार ही रहा। फिर दोनों भाई थर थर कांपने लगे क्योंकि उनका झूठ सबके सामने आ रहा था। बादशाह ने गुस्से में उन्हें कैद खाने में डाल दिया और एक बार फिर बादशाह ने अपनी आवाम से गुजारिश की। सुमा उन भाइयों की छोटी बहन थी, वो अपनी लामाओं के झुंड को चरा रही थी। तब उसने ये मुनादी सुनी। वो उसी वक्त लामाओं के झुंड को लेकर घर गई और अपने वालिदैन से उसने गुजारिश की कि अब उसे जाने दिया जाए। अभी तुम बहुत छोटी हो मेरी बच्ची, और देखो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ। हम हमारी लाडली सुमा के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन जरा सोचिए, अगर शहजादे गुजर गए तो बादशाह कैसा महसूस करेंगे, और अगर मुझे वो तालाब मिला तो शायद बादशाह मेरे भाइयों को माफ कर दें। अजी, शायद खुदा की यही मर्जी है। और फिर उन्होंने उसे दुआ दी। फिर वो दिलेर सुमा अपने पसंदीदा पालतू लामा के साथ अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। साथ में उसने कुछ मकई के दाने और पानी लिया। रात में वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर सो गई। सुबह पास ही टहनी पर आराम कर रहे चहचहाने वाले पंछियों की आवाजों से उसकी नींद खुली। वो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कल कैसे उसके पास के मकई के दाने उसे दिए और कैसे उसे कभी भी वो जादुई तालाब नहीं मिलने वाला। चलो उसकी मदद करें। मेहरबानी कर मेरी मदद कीजिए। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम में से हर एक तुम्हें हमारा एक खास पर देगा। उन्हें तुम एक पंखे की तरह हाथ में पकड़ो। वो पंखा तुम्हें जादुई ताकत देगा और तुम्हें जहाँ चाहिए वहाँ पल भर में पहुँचा देगा और तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। हर एक पंछी ने बड़े ध्यान से उसे खास पर दिया। सुमा ने उनसे एक पंखा बनाया और उन्हें लामा के ऊन से बने धागों से बांध दिया। बूढ़े पंछी ने कहा, 3 खतरनाक जानवर उस जादुई तालाब की हिफाजत करते हैं। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, बस पंखा उठाकर गाना गाना। डरना नहीं है वहाँ, फरिश्ते हैं जहाँ। सुमा ने बड़े प्यार से पंछियों का शुक्रिया अदा किया और उसने पंखों को हाथ में लेकर कहा, हमें दुनिया के आखिरी छोर वाले जादुई तालाब के पास ले चलो। फौरन ही एक हवा का झोंका आया और उन्हें उठाकर पहाड़ों के पार ले जाने लगा। वो बर्फ से ढकी हुई चोटियां थीं। आखिर में हवा ने उन्हें आसमान से जुड़े तालाब के पास लाकर छोड़ दिया। वो दौड़कर तालाब के पास पहुंची। अपने बर्तन में पानी भरने वाली थी कि इतने में एक बड़ा सा केकड़ा वहां आया और उसने कहा, तालाब से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही केकड़े ने अपने पंजे सुमा की जानिब बढ़ाए, वैसे ही लामा ने केकड़े की आंखों में थूका। छी, तुम गंदे जानवर हो। इतने ही वक्त में सुमा को जादुई पंखा निकालकर गाना गाने का वक्त मिला। डरना नहीं है वहाँ, फरिश्ते हैं जहाँ। केकड़े ने अपनी आंखें बंद की और वो सो गया। उसने फिर से अपना बर्तन भरना शुरू किया। तभी पानी से एक आवाज आई,
दूर हो जाओ मेरे तालाब से, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लामा ने मगरमच्छ को देखते ही उसकी आंखों में फिर थूका। ओफो, या खुदा, क्या बेवकूफी है ये। सुमा ने झट से पंखा उठाया और गाना गाया। तभी वो मगरमच्छ गहरे पानी में चला गया। सुमा अब डर से बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में ही उसे सीटी की तरह चुभती हुई आवाज सुनाई दी। दूर हो जाओ तुम्हारे लामा को लेकर इस तालाब से, वरना मेरा जहर तुम दोनों की जान ले लेगा। सुमा ने ऊपर देखा तो उड़ने वाला सांप दिखा। उसके बाद सांप ने अपना जहर सुमा की जानिब फेंका, लेकिन उसी वक्त लामा ने भी हवा में थूक फेंका। दोनों के थूक हवा में एक दूसरे से टकराए और जमीन पर आकर गिर गए। एक बार फिर सुमा के पंख और गाने ने उसे मुसीबत से बचाया। सांप जमीन पर आकर गिर गया, उसके पंख बंद हो गए और वो खर्राटे लेने लगा। सुमा अपने प्यारे लामा को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगी और उसे खामोश किया। उसने लामा को चूमा। उसे एहसास हुआ कि अब मुसीबत पूरी तरह से टल चुकी है। उसने बर्तन भरना शुरू किया। उसके बाद उसे एकदम से एहसास हुआ और उसने कहा, हमें महल की जानिब ले चलो। और उसने खुद को महल के दरवाजे पे देखा। बीमार परेशान शहजादे के पास वो पहुंची। इसके बाद सुमा ने पानी की घूंट उसे पिलाए और फौरन ही वो खुशी से उठकर बैठ गया और उसने कहा, कितना ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। बादशाह और मलका बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी दिलेरी को बहुत सराहा और उसे पूरी सल्तनत की दौलत दे दी। लेकिन उसने कहा कि उसकी सिर्फ 3 आरज़ू है। पहली आरज़ू ये कि जादुई पंख वापस अपनी जगह चला जाए और वो पंख फौरन ही खिड़की से उड़कर बाहर चला गया। दूसरी ये कि उसके भाइयों को रिहा कर दिया जाए। बादशाह ने तुरंत ही उन्हें रिहा कर दिया। और आखिरी ख्वाहिश ये कि बहुत बड़ा खेत जिसमें बहुत से लामा के झुंड हों उसके माँ बाप के लिए। ऐसा ही होगा। क्या तुम हमारे साथ राजमहल में नहीं रहोगी? हम तुम लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे। शुक्रिया बादशाह सलामत, लेकिन मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आ रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं वापस उनके पास जाऊँ। और इस तरह से वो घर वापस लौटी और जिंदगी भर अपनी वालिदैन, भाई और लाडले लामाओं के साथ रहने लगी। कहानी खत्म हुई। छोटा तिलिस्माती कलम। नोआ अपनी स्कूल की बस से उतरकर सड़क पर चलने लगा। ये वही छोटा सा देहात है जहाँ वो रहता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का आज सबसे अजीब और गरीब दिन होगा। वो एक फुटपाथ पर चल रहा था। तभी उसने एक ज़ईफ आदमी को देखा जो कि ठंड से कांप रहा था और वो बहुत भूखा लग रहा था और खाने के लिए वो बेहद आजिज़ी के साथ में भीख मांग रहा था। मेहरबानी करके मेरी मदद करो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? नोआ को ज़ईफ आदमी को देखकर रहम आया, इसीलिए वो करीब की ही एक दुकान में गया और उसने खाना खरीदा। साथ ही साथ उसने पानी की बोतल भी खरीदी और दुकानदार को वो पैसे दिए जो उसने अपने नए पेंसिल बॉक्स को खरीदने के लिए बचा कर रखे थी। वो ज़ईफ आदमी उससे ज्यादा दूर नहीं था। ये लीजिए, ये आपके लिए है। शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने सोचा कि मैं शायद भूखा ही मर जाऊंगा। तुम बहुत रहम दिल हो। खाना खाने के बाद और थोड़ा पानी पीने के बाद, यानी कि नोआ ने मोहब्बत से उसकी देखरेख की, तब वो ज़ईफ आदमी बेहतर महसूस करने लगा और उसे नोआ पर फख्र हुआ। मैं बहुत लंबे वक्त से एक रहम दिल इंसान की तलाश कर रहा था। मुझे यकीन है कि आज मेरी वो तलाश खत्म हो गई है। नोआ पसोपेश में था। जब उसने सुना तो उसने उस ज़ईफ आदमी से मोहब्बत से पूछा, आपका क्या मतलब है? ज़ईफ आदमी ने अपने पास ही झोली में हाथ डाला और एक पुराना सा डिब्बा निकाला। उसके अंदर की चीजों को दिखाने के लिए वो जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था, वो संजीदा और खामोश दिख रहा था। अंदर एक बहुत पुराना कलम था जो कि रोशन छोटे सितारों की तरह चमक रहा था। इस नजारे को देखकर नोआ हैरान हो गया। यकदम ही ज़ईफ आदमी ने
डिब्बे के जंग लगे ढक्कन को बंद किया और कलम नोआ के हवाले कर दिया। नोआ, हाँ, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ और बहुत लंबे वक्त से तुम्हारे जैसे लड़के की मैं तलाश कर रहा था जो दूसरों की मदद के लिए अपनी ख्वाहिशों को भी तर्क करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तुम इस जादुई कलम से दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम जो भी चाहते हो उसकी तस्वीर बनाओ, वो फौरन ही तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ओह, क्या वाकई? अरे वाह, बहुत शुक्रिया रहम दिल जादूगर। अब मैं जब चाहूँ तब लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इन 2 बातों को याद रखो। इस तिलिस्म को तुम किसी को भी मत बताना, वरना तुम इससे दूर हो सकते हो। और दूसरी बात, अगर तुम्हें किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े, तुम बस मेरी एक तस्वीर बनाना, मैं वहाँ एक ही लम्हे में पहुँच जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए जादूगर, मैं आपका मशवरा याद रखूंगा। एकदम ही पलक झपकते ही जादूगर गायब हो गया और नोआ खुशी खुशी अपने घर की जानिब चल पड़ा। नोआ अपनी जादुई कलम को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, तो उसने एक केक और एक मिठाई की तस्वीर बनाई जो कि फौरन ही उसके सामने एक चांदी के तश्त में हाजिर हुए। अगले ही रोज उसने उससे मिलने वाले हर एक इंसान को उनकी जरूरत की चीजों को देकर उनकी मदद करना शुरू की। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ एक शख्स करीब की एक होटल से भारी भरकम और अजीबो गरीब सामान उठाकर ले जा रहा था, लेकिन उसकी वो कोशिशें नाकाम हो रही थी। उस आदमी की मदद के लिए नोआ ने एक सामान उठाने वाली गाड़ी बनाई जो कि भारी भरकम सामान को भी अपने साथ ले जा सके। फिर उसने एक छोटी लड़की को देखा जो नंगे पैर थी और माचिस बेचने की कोशिश कर रही थी और उसकी किसी को परवाह नहीं थी, लेकिन नोआ को उसकी परवाह हुई और उसने उसके लिए कुछ आरामदायक चप्पलों के साथ खाने की एक टोकरी की तस्वीर बनाने के लिए आगे बढ़ा। जरा देर के बाद नोआ ने देखा कि कुछ लोग बेघर हैं और शदीद ठंड में सड़क पर कांप रहे हैं, इसीलिए उसने उन लोगों के लिए कुछ छोटे और खूबसूरत से घर बनाए जिन्हें वो अपना कह सके। इस तरह से नोआ ने अपने करीब करीब के तमाम लोगों की मदद की। एक दिन नोआ जब एक गरीब शख्स की मदद कर रहा था, तब एक खुदगर्ज और लालची मेयर ने उस रहमदिल और मददगार लड़के की जानिब देखा। मेयर ने ये भी देखा कि ये छोटा लड़का एक आम से लेकिन जादुई कलम के साथ किस तरह से इन तमाम चीजों को हवा से बाहर निकाल रहा था। अगले दिन मेयर ने कुछ पुलिस वालों को लड़के को गिरफ्तार करने के लिए कहा और जादू का गलत इस्तेमाल करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मेयर के बनाए हुए कानून के मुताबिक जादू का इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ वहाँ के अमीर लोगों को ही थी। पुलिस ने नोआ को उसके जादुई कलम के इस्तेमाल के साथ गरीब और बदकिस्मत लोगों की मदद करते हुए देखा और उसी मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे खींचकर मेयर के सामने पेश किया। मेयर ने कहा, नोआ, मैंने देखा है कि तुम कैसे उन बीमार, भूखे, बेघर, गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। अब तुम मेरी भी मदद जरूर करोगे, इसीलिए मेरे लिए तस्वीर बनाओ जो मुझे चाहिए, एक दरख्त जो फकत सोने के फल देता हो। माफ कीजिए साहब, पूरी इज्जत के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि मैं गरीबों और जरूरतमंद लोगों की ही मदद करता हूँ। आप ना तो गरीब हैं और ना ही जरूरतमंद। ये एक गुजारिश नहीं है नोआ, ऐसा करने के लिए तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। माफ कीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता मेयर। बेवकूफ लड़के, फिर तुम एक जालिम सजा के लिए तैयार रहो। मेयर ने तब अपने खादिमों को नोआ से जादुई कलम छीनने के लिए कहा। तब एक पुलिस वाले ने बआसानी ऐसा किया और उसने कलम मेयर को दे दिया। अब मेयर ने एक सुनहरा फल देने वाले दरख्त की तस्वीर बनाना शुरू किया। ये एक अच्छी तस्वीर थी जो रंग बिरंगी बारीकियों से भरी हुई थी, लेकिन कलम के अंदर का जादू उसका जवाब नहीं दे रहा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को तस्वीर बनाने का काम सौंपा, जिसने कई मर्तबा कागज पर तस्वीर बनाने की कोशिशें भी की, लेकिन वो तमाम नाकाम रहे और हार मानकर पुलिस वालों ने मेयर से कहा, हमें लगता है कि कलम हमारा हुक्म नहीं मानेगी सर। ये फकत नोआ के हाथ को पहचानता है। फकत यही लड़का आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है।
لالچی میئر بہت ہی ظالم تھا۔ نوا، میں تم سے آخری مرتبہ پوچھتا ہوں، کیا تم میرے لیے سنہرے پھل والے درخت کی تصویر بنا رہے ہو یا نہیں؟ سوچ سمجھ کر کہو، وہی تمہارے آخری لفظ ہو سکتے ہیں۔ نوا ایک بہادر لڑکا تھا، لیکن اس وقت وہ صرف اس پورے معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ تصویریں بنائے گا، اور میئر نے نوا کو جادوئی قلم سونپ دیا۔ اگلی تصویر جو نوا نے بنائی وہ کاغذ کے ٹکڑے پر ایک ضعیف شخص کی تصویر تھی، اور جس جادوگر نے ہوشیار اور رحم دل لڑکے کو جادوئی قلم دیا تھا وہ نوا کو بچانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ ضعیف جادوگر نے آتے ہی ان پولیس والوں کو بلیوں میں تبدیل کر دیا، اور اس نے کہا، میئر صاحب، آپ خود کے لالچی منصوبوں کے لیے اس قلم کے جادو کا استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ آپ ہی وہ دوسرے انسان ہوں گے جو اپنی خود کی پونچھ کو چاٹے گا۔ میئر بہت خوف زدہ ہوا اور خوف کی وجہ سے وہ کانپنے لگا۔ پھر ضعیف شخص نے میئر کو اتنا لالچی اور موقع پرست نہ بننے کے لیے کہا۔ میئر کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اس نے نوا اور جادوگر سے معافی مانگی۔ اگلے ہی دن میئر نے نوا کو اس کے رحم دل کاموں کے لیے اس کی عزت افزائی کی اور مدد کے لیے تمام شہر کے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا، اور نوا نے ان غریب بدقسمت لوگوں کی مدد کرنا جاری رکھا اور خوشی خوشی اس کی زندگی گزرنے لگی۔ کہانی سماپت۔ جادوئی بوتل۔ ابو نام کا ایک مچھوارا تھا، وہ سمندر کے کنارے رہتا تھا، اور اب اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ کب سے مچھوارا بنا۔ جب وہ جوان تھا تب ساری رات مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، اور صبح تازی مچھلیوں کے ڈھیر کو وہ وہاں کے بازار میں لے جا کر فروخت کرتا تھا۔ ابو اب قریب 80 برس کا ہو گیا تھا۔ اب وہ کشتی سے زیادہ سفر نہیں کرتا تھا، اب وہ کنارے سے ہی جال پھینکتا تھا، اور وہ بھی دن کے ایک پہر میں صرف 4 بار۔ اس سے جو مچھلیاں ملتی ان میں سے وہ اپنے لیے کچھ رکھ کے باقی چند پیسوں میں وہ بازار میں فروخت کرتا۔ ایک دن وہ صبح ہی سمندر پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا۔ اس نے جال پانی پر پھینکا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کے جال میں کچھ وزندار پھنسا ہے۔ پھر اس نے وہ جال کھینچا اور دیکھا تو اس میں ایک مرا ہوا گدھا پھنسا ہوا تھا۔ یا اللہ! وہ چلایا، اتنی محنت، وہ بھی ایک مرے ہوئے گدھے کے لیے! کیا کروں میں؟ اب کیا کھاؤں میں؟ اس نے اپنی مدد کے لیے سولومن سے دعا کی، جو پہلے کا ایک راجا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے پھر سے جال پھینکا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ جال میں کچھ پھنسا ہے، اور اس بار جال پہلے سے زیادہ بھاری تھا۔ بڑی محنت سے ابو نے جال کھینچا، دیکھا تو اس میں ریت سے بھرا ہوا گھڑا تھا۔ یا اللہ! وہ پھر چلایا، اتنی محنت، وہ بھی ایک ریت کے بھرے گھڑے کے لیے! کیا کروں میں؟ اب کیا کھاؤں میں؟ اس نے پھر سے اپنی اچھی قسمت اور طاقت کے لیے سولومن سے دعا کی۔ ابو نے تیسری بار پانی میں جال پھینکا، اور اب کی بار پچھلی دونوں بار سے زیادہ بھاری کچھ پھنسا تھا۔ اس سے کرکرانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے برتن ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں۔ کچھ اندازہ ہوا وہ کیا ہوگا؟ پرانے صندوق، برتن، تشتوں کا ڈھیر، اور وہ بھی پوری طرح سے زنگ لگا ہوا اور بنا کسی کام کا۔ ابو نے آسمان کی جانب دیکھا۔ سولومن خدا، میں دن میں صرف 4 بار جال پانی میں پھینکتا ہوں، اور اب تک 3 بار پھینک چکا ہوں۔ اگر میں بنا ایک بھی مچھلی پکڑے گھر گیا تو یقیناً بھوک سے مر جاؤں گا۔ مہربانی اپنے اس اعتبار کرنے والے کی حفاظت کرو۔ ابو نے آسمان کی جانب دیکھ کر غم زدہ صدا دی، اور ایسی دعا کے ساتھ ابو نے آخری بار پانی میں جال پھینکا۔ اس بار سب سے بھاری چیز ابو کے جال میں پھنسی، اور جال نکالنے کے لیے ابو کو گہرے پانی میں اترنا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پیتل کی بوتل تھی۔ اس بار ابو بہت خوش ہوا۔ بھلے ہی کوئی مچھلی نہیں تھی، لیکن پیتل کی بوتل اتنی بھاری تھی کہ کوئی بھی اسے 10 سونے کے سکوں میں خرید لیتا، جس سے ابو اپنے لیے پورے مہینے بھر کا راشن خرید سکتا تھا۔ لیکن وہ بوتل سیسے کی سیل سے بند کیوں تھی؟
अबू ने करीब से देखा तो उसे दिखा कि वो सील और किसी और की नहीं बल्कि सोलोमन की थी। अब तो वो और ज्यादा बेचैन हुआ ये देखने के लिए कि उस बोतल के अंदर क्या है। उसने वो सील अपनी चाकू से खोला और जैसे ही उसने बोतल खोली उसमें से एक बड़ा सा इफरित बाहर आया। एक बड़ी दहाड़ के साथ वो 100 फीट ऊंचा आया। अबू इतना डर गया कि उसकी चीख निकल पड़ी। इफरित ने अबू को देखा और उसने अपनी कामत को छोटा किया, फिर भी वो 10 फीट का था। मछुआरे, क्या तुमने मुझे आजाद किया? उसने कड़कड़ाने वाली आवाज में पूछा। मैं जी जनाब इफरित, मेरा नाम अबू है। अबू? अच्छा नाम है। इफरित ने अजीब से हंसते हुए कहा, मैं इस बोतल में काफी वक्त से फंसा पड़ा था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ अबू। अब मुझे बताओ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? मरना? इफरित, मैंने आपको आजाद किया, फिर भी आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे इस बोतल में सोलोमन ने कैद किया था मछुआरे अबू। लेकिन सोलोमन तो 2000 साल पहले यहाँ राज करते थे। हाँ, पक्का कहूँ तो 1800 साल पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत की थी। मुझे इस बोतल में कैद किया था। उसके बाद उसने ये बोतल समंदर में फेंक दी। तब से मुझे मेरी गलती के बारे में बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कैद से रिहा किया, फिर मेरी जान क्यों ले रहे हैं? पहले 1000 साल मुझे लगता रहा कोई मुझे छुड़ाने आएगा, पर कोई नहीं आया। तो मैंने तय किया जो मुझे छुड़ाएगा उसे मैं जिंदगी भर खत्म ना हो इतनी दौलत दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा मैं उसे मार दूंगा जो मुझे आजाद करेगा। तुम मुझे बताओ कैसे मरना पसंद करोगे, बोलो। अबू ने सोलोमन से दुआ की कि वो इस आफत से सही सलामत छूट जाए। फिर उसने इफरित से पूछा, साहब, आप कहते हो आपको सोलोमन ने इस बोतल में कैद किया था? पर मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। क्या? इफरित चिल्लाया और उसकी आवाज जैसे बिजलियां कड़की हों। आप बहुत ऊंचे हो, आपके हाथ दरख्त की तरह मोटे हैं। कैसे मुमकिन है तुम एक छोटी सी बोतल में समा सको? मुझे मरने की फिक्र नहीं है, लेकिन एक झूठे के हाथों नहीं मरना। अरे ओ छोटे मछुआरे, मैं बेशक बुरा हूँ, लेकिन मैं मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो साबित करो। अबू के कहते ही इफरित ने हाथों को हवा में घुमाया और फिर वो धुएं में बदल गया। फिर वो धीमे धीमे बोतल में जाने लगा और फिर अंदर से चिल्लाया, देखो कैसे मैं पूरी तरह इस बोतल में दाखिल हूँ। अबू ने झट से शीशे का वो सील उठाया और वो बोतल बंद कर दी और इफरित फिर से अंदर कैद हो गया। इफरित ने बाहर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सील नहीं तोड़ पाया। फिर इफरित कड़कड़ाते हुए चिल्लाया। फिर उसने खुद को खामोश किया और चालाकी से उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने हार मानी। तुम बहुत चालाक हो अबू। चलो, मैं वादा करता हूँ जो इस जाड़ से मुझे बाहर करेगा मैं उसे जवान कर दूंगा। चलो ठीक है, बाहर करो अबू, तुम्हारा इनाम इंतजार कर रहा है। अबू ने वो आराम से सुन लिया और फिर हंसकर उससे कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने मेरी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारी है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़ईफ जरूर हूँ, लेकिन इतना पागल नहीं। अच्छा, अलविदा। नहीं, रुको, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। अबू ने बोतल को दूर समंदर में फेंक दिया और अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन का शुक्रिया अदा किया। कहानी खत्म हुई। जादू में फंसी शहजादी। एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। उनके नाम थे ऑस्टिन और कार्टर। कार्टर, किधर हो? इधर आओ। क्या
ऑस्टिन, बाढ़ का काम पूरा करो, मैं देहात जा रहा हूँ। ठीक है अब्बा। देहात जाते हुए वो किसान सोचने लगता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, गरीब होने से पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं करीब 2 लोग भी बैठे थे। उसने उनकी बातें सुनी। बादशाह की बेटी को 2 ड्रैगन और एक बुढ़िया ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहां से आजाद कराना चाहता है उसे 3 इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं वो इम्तिहान बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, जो कोई इम्तिहान पूरा नहीं कर पाता ड्रैगन उसे खा जाता है। और किसी ने भी इन तीनों इम्तिहानों को पूरा किया तो और वो इंसान शहजादी से शादी करेगा और महल के साथ खजाने का मालिक भी बनेगा। फिर किसान ने सोचा, ओह, कार्टर करेगा ये काम। तीनों इम्तिहान पूरा करेगा, शहजादी से शादी करेगा और फिर सल्तनत का बादशाह बनेगा। कुछ रोज के बाद कार्टर उनके इकलौते घोड़े पर बैठकर जादुई महल के सफर की जानिब निकल पड़ा। उसने अब्बाजान की दी हुई तलवार को हवा में ऐसे लहराई। वो एक बुरे दिल का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा तो उसने उससे निस्तनाबूद कर दिया। वो करीब के तालाब से पानी पीने गया तो वहाँ उसने बतख के मासूम बच्चे देखे, उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसने उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। और आखिरकार वो महल की जानिब पहुँच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। उसे इंतजार करवाया, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी सी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ। तुम क्या बहरी हो? नहीं, मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। अरे रुको जरा, पहले तुम्हें 3 अम्रों को पार करना है। कैसे अम्र? अम्र? मैं किसी चीज से नहीं डरता। अब मैं सूरजमुखी के बीज हवा में फेंकने वाली हूँ। वो हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें उससे उठाकर थैली में जमा करने हैं। 1 घंटे में करना है। तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूँ? ये भी कोई अम्र है? मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। ऐसा कहकर वो ज़ईफ खातून चली गई और वहाँ से रवाना हो गई। ये नामुमकिन है, मैं नहीं उठाऊंगा बीज। जब वो ज़ईफ खातून आई तो उसने दूसरा अम्र बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियों को एक गहरे तालाब में फेंक दिया। वो तुम्हें 1 घंटे के अंदर बाहर निकालनी है। मैं दीवाना नहीं हूँ, पानी बहुत गहरा और ठंडा है। तुम अमरों को पूरा नहीं कर रहे हो फर्जंद। चलो खैर, मैं तीसरा अम्र देती हूँ। चलो। ये सब मुझे खराब लग रहा है। जब वो महल में पहुँचे तब वो सीधा अंधेरे कमरे में गए। 3 मुजस्सिमे सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है ये बताने के लिए शहजादी कौन है। तुमने सही बताया तो वो आजाद, गलत बताया तो फिर? मैं दाएं हाथ वाले को चुनता हूँ। दायां मुजस्सिमा, तुम खुद खोलो। नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन बचाओ, नहीं ड्रैगन बचाओ। कुछ दिनों के बाद किसान ऑस्टिन से कहता है, कार्टर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब्बा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं बेटा, अब मेरे इकलौते बेटे को नहीं जाने दूंगा। मुझ पे यकीन कीजिए अब्बा, मैं जरूर वापस आऊंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए घोड़ा और तलवार नहीं है। ऑस्टिन ने सिर्फ एक पाव का टुकड़ा लिया और चलते चलते ही जादुई महल की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया, जहाँ उसने देखा ढेरों चींटियाँ टीला खुद बनाने की कोशिश कर रही हैं। ओह बेचारी चींटियाँ, किसने तोड़ा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे बनाने में। काम होने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब की जानिब गया और उसने बतख के बच्चे देखे। ओह बेचारे बच्चे,
तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो पाव के टुकड़े। बतख के बच्चों ने वो पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसे जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पर रख दिया। फिर से महल की जानिब अपना सफर शुरू किया। जब वो पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? सलाम, मुझे शहजादी को बचाना है। तुम कोशिश कर सकते हो। उसके बाद उस ज़ईफ औरत ने सूरजमुखी के बीज जमीन पर फेंक दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इन्हें चुन लूंगा। 45 मिनट के बाद ऑस्टिन ने तमाम कोशिशें छोड़ ही देने वाला था। इतने में ही उसकी मदद के लिए ढेरों चींटियां वहां आ गईं। उसने उनका टीला बनाने में मदद की थी। वाह, शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये थैली तो बीजों से पूरी तरह भर गई। शुक्रिया मेरे दोस्तों। उसके बाद वो ज़ईफ औरत वापस आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरे अम्र से गुजरना है। तुम्हें 12 अंगूठियां इकट्ठी करनी है। ऐसा कहकर उस ज़ईफ खातून ने अंगूठियां पानी में फेंक दी। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन पानी बहुत गहरा था। उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे। उसने उन्हें पाव का टुकड़ा खिलाया था। ओह शुक्रिया दोस्तों, अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियां हैं। उसके बाद उस ज़ईफ औरत के पास गया। हाँ, सभी 12 छल्ले, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब मेरे पीछे आओ। फिर उस बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को आखिरी अम्र के बारे में समझा दिया। सामने के 3 मुजस्समे देखे तब वो पहचान ही नहीं पा रहा था। शहजादी कौन सी है? ओह, ये एक जैसे नजर आ रहे हैं। सोचो ऑस्टिन, सोचो, इनमें से शहजादी कौन हो सकती है? फौरन ही सैकड़ों मधुमक्खियां खिड़की से अंदर दाखिल हुईं। वो बीच वाले मुजस्समे पर भिनभिनाने लगी। वो बीच वाला है। ओह, बीच वाले मुजस्समे खुद देखो। सफेद कपड़ा जमीन पर गिर पड़ा और शहजादी नजर आने लगी। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऑस्टिन। और फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़कर बाहर की जानिब जा रही हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, तो मैं चलती हूँ। इसके बाद ऑस्टिन ने शर्त जीत ली थी और फिर उसने शहजादी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और शहजादी राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और महल में 2 प्यारे से बतख के बच्चे भी नजर आते थे। कहानी खत्म हुई। कभी ना हंसने वाली शहजादी। एक रियासत में एक शहजादी थी जो अपनी पूरी हयात में कभी हंसी ही क्या, मुस्कुराई तक न थी। वो अपने वालिद की बेहद चहेती थी, इसीलिए उसके वालिद को उसे इस हाल में देखकर बहुत रंज होता था। एक मर्तबा उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने रियासत में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई शहजादी को हंसाएगा वो शहजादी से शादी कर सकेगा। फिर क्या था, जोकर, जादूगर और कई फनकार बादशाह के महल में हाजिर हो गए। उन सभी ने अपने अपने तरीके से शहजादी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हंसी ही नहीं। वहीं महल के करीब जैक नाम का एक बहुत ही ईमानदार, थोड़ा सीधा और अजीब लड़का रहता था। वो उसकी गरीब माँ के साथ रहता था। एक बार जैक की माँ ने उसे बाहर जाकर काम ढूंढने को कहा। उस नौजवान ने जल्द ही महल के पास के ताम खाने में मददगार के तौर पर काम शुरू किया। पहले दिन के काम के बाद ताम खाने के मालिक ने उसे तनख्वाह के तौर पर दर्जन भर अंडे दिए, जिसे हाथ में लिए वो घर निकल पड़ा। जैक इतना खुश था कि वो दौड़ते हुए घर जा रहा था और बिल्कुल महल के सामने जहाँ शहजादी खिड़की में खड़ी थी वहाँ आकर वो गिर गया और उसके अंडे टूट गए। शहजादी ने ये सब देखा, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उससे कहा, अरे बेवकूफ कहीं के, तुम अगर सभी अंडों को अपने टोपी में डाल कर लाते तो वो टूटते नहीं ना। अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज दिन भर काम करने के बाद जैक को तनख्वाह के तौर पर खंजीर का एक बच्चा दिया गया। घर जाते वक्त जैक को अपनी अम्मी की बातें याद आई और उसने खंजीर के बच्चे को अपनी टोपी में डालकर घर की जानिब दौड़ लगाई, लेकिन बिल्कुल महल के सामने खंजीर के बच्चे ने किसी तरह टोपी से बाहर छलांग लगाई और भागने लगा। जैक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पैर फिसलकर गिर गया और सर से लेकर पैर तक कीचड़ में भर गया।
शहजादी अपने महल की खिड़की से सब देख रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब कीचड़ से लथपथ हालत में घर पहुंचा, तब उसकी अम्मी ने गुस्से से कहा, ओह जैक, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमने उस खंजीर के बच्चे को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली दी। जैक ने अपनी अम्मी से किए वादे के मुताबिक उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई, तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। खत्म भी किया और जैक का उस पर ध्यान भी न गया, क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो हमेशा की तरह शहजादी के सामने से निकल गया। लेकिन शहजादी को जरा भी हंसी न आई। जैक की अम्मी ने बेचैन होकर दोबारा उससे पूछा, उस मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों न लाए बेवकूफ? अगली बार मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे रोज जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था। और इस बार शहजादी जो बालकनी से देख रही थी, वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। कौन है वो? किसने मेरी बेटी की खुशी वापस लौटाई? तो एक शख्स ने कहा, जी मैं। और दूसरे ने कहा, मैं हूँ। नहीं, वो शख्स वहाँ है वालिद साहब जिसने मुझे हंसाया। ये कहकर शहजादी ने जैक की जानिब इशारा किया। फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसरत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। शहजादी रोज और सुनहरा परिंदा। कई साल पहले एक दूर की रियासत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसके बाल लंबे और लाल थे और उसे गुलाब के फूल बेहद पसंद थे और इसीलिए सभी उसे शहजादी रोज के नाम से जानते थे। रोज शाम शहजादी रोज अपनी बालकनी में जाती और ताली बजाती। तब कहीं से एक सुनहरा परिंदा आकर उसके कांधे पे बैठ जाता और फौरन शहजादी के बाल तेज लाल रोशनी में चमकने लगते। जब परिंदा अपनी मीठी आवाज में गाने लगता, तब शहजादी रोज भी उसका साथ देती और उसी वक्त रियासत की सारी आवाम मीठे सपने देखते हुए सो जाती, बिल्कुल अलग सुबह तक। यूं कुछ साल गुजर गए। रोज शाम शहजादी रोज उसके छोटे से सुनहरे परिंदे के साथ अच्छी सी लोरी गाती, जिससे तमाम लोगों को मीठे सपने आते और सुबह तक अच्छी नींद मिलती। लेकिन एक रोज एक भयानक वाकया पेश आया। एक बेरहम बूढ़ी डायन को शहजादी का पता चल गया और उसने बदवा देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा, सिमसलाबीम, होने दो रोज का कलर डीम। डायन के ऐसा कहते ही शहजादी रोज के बाल कोयले से काले हो गए। उस शाम को भी शहजादी रोज ने अपनी बालकनी में जाकर तालियां बजाई, लेकिन जब सुनहरा परिंदा आया तब उसके बाल लाल की जगह काले रंग में चमकने लगे और जैसे ही सुनहरा परिंदा सुरीली आवाज में गाने लगा, वैसे ही शहजादी भी लोरी गाने लगी, जिसे सुनकर तमाम लोग सो गए। लेकिन उन्होंने उस रात मीठे नहीं बल्कि खौफनाक सपने देखे। दूसरे दिन जब शहजादी को यह बात पता चली तो उससे बहुत अफसोस हुआ। उसने परिंदे से पूछा, सुनहरे परिंदे, मुझे बताओ ना, मैं मेरी आवाम के मीठे सपने पहले जैसे कैसे करूं ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सो पाए? काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की। शहजादी को सलाह से हैरत हुई और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने एक बर्तन में पानी लेकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी। उसके बाद उसने अपने बाल उस गुलाब जल में डुबो दिए।
और फिर मौजज़ा हुआ। उसने जैसे ही अपने बाल उस गुलाब जल में डुबोए, उसके बाल पहले की तरह लाल हो गए। फिर आसमान भी चकाचौंध हो गया। शहजादी ने लोरी गाई और तमाम लोग मीठे सपने देखते देखते सुबह तक सोते रहे। लेकिन यहाँ वो बेरहम डायन उसकी बद्दुआ नाकाम होने की वजह से बहुत गुस्सा हुई और उसने दोबारा बद्दुआ देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा सिमसालाबिम, होने दो रोज का कलर डिम। दोबारा शहजादी के बाल कोयले से काले हो गए, लेकिन इस बार उस बेरहम डायन ने रियासत के तमाम गुलाब उसके उड़ने वाले झाड़ू पर बैठकर निकाल लिए। अब देखती हूँ कि तुम मेरी बद्दुआ से कैसे बचती हो। और वो गुस्से से इतराई और यहाँ फिर से अफसरदा शहजादी ने परिंदे से दरियाफ्त किया, सुनहरे परिंदे मुझे बताओ ना, मैं मेरी रियाया के सपने पहले जैसे मीठे कैसे कर सकती हूँ ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सोए। काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की, लेकिन मैं अब गुलाब कहाँ ढूंढूं? काले बाल गुलाब जल में। ये कहकर वो परिंदा उड़ गया। शहजादी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जो कुछ हुआ उससे इतना बुरा लग रहा था कि उसकी आंखें भर आई और आंसू की एक बूंद जमीन पर गिरी। बिल्कुल उसी वक्त एक जवान और खूबसूरत शहजादा जो शहजादी की बालकनी के नीचे खड़ा था, उसने एक छोटा डिब्बा खोलकर उसमें से एक लाल रंग का बाल निकाला और उसने उससे झुककर शहजादी के आंसू पर लगा दिया। फिर क्या था? मौजज़ा हुआ। अचानक वो लाल बाल एक खूबसूरत गुलाब की कली में बदल गया। शहजादे ने वो गुलाब उठाया और शहजादी तक ले गया। गुलाब देखते ही उसने अपनी आंखें पोंछी और उसकी पंखुड़ियां निकालकर बर्तन के पानी में डाल दी। उसके बाद जैसे ही उसने अपने बाल उसमें डुबोए, वो बद्दुआ टूट गई और सभी ने चैन की सांस ली। फिर बादशाह ने शहजादे से सवाल किया, नौजवान, तुम्हें वो लाल बाल कहाँ से मिला? जब राजकुमारी और मैं दोनों छोटे थे तब मैंने राजकुमारी का एक बाल बड़े प्यार से संभाल के रखा था। राजकुमारी ने भी मेरा एक बाल तोड़कर अपने पास संभाल कर रखा था। ये सच कह रहे हैं अब्बा जान। शहजादी ने शहजादे की बात से हामी भरी और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोलकर उसमें से शहजादे का एक बाल निकालकर तमाम लोगों को दिखाया, जिसे देख सभी को बहुत मसरत हुई। उसी दिन शहजादे और शहजादी ने एक दूसरे से निकाह भी कर लिया। और जब बेरहम डायन को ये पता चला कि उसकी बद्दुआ फिर से टूट गई है, तब वो गुस्से से तिलमिला उठी और गुस्से से फूल फूल कर वो ऐसे फट गई कि उसके हजारों टुकड़े इधर उधर हर जगह पर बिखर गए। कुछ अरसे बाद रियासत के हर एक बागीचे में फिर से गुलाब खिलने लगे। हर जगह गुलाब ही गुलाब थे और वो रियासत लाल रंग के गुलाबों से भर गई, जैसे शहजादी के लाल बाल थे। और हर रात शहजादा और शहजादी उस बालकनी में आते और रोज उस सुनहरे परिंदे से मिलते और गाना गाते, जिसके बाद तमाम लोग मीठे सपने देखते हुए सुबह तक चैन की नींद लेते। खत्म शुद। एक शानदार चुड़ैल। बहुत वक्त पहले गुजरे जमाने में इंग्लैंड के राजा ऑथर को गैर इजाजती जमीन पर शिकार करने के लिए कैद कर लिया गया। रुकिए, तुम्हें यहाँ इजाजत नहीं है शिकार की। तुम्हें किसने कहा यहाँ शिकार करना है? किसने इजाजत दी तुम्हें शिकार के लिए? किसी ने नहीं? तो फिर एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बादशाह के पास लेके जाऊंगा, बादशाह मार्कस। जब बादशाह मार्क्स ने उसे देखा तब उन्होंने कहा, तुम एक समझदार नौजवान नजर आ रहे हो, लेकिन तुम यहाँ शिकार करने क्यों आए हो? तुमने हमारे कायदों को तोड़ा है। मैंने कोई निशान नहीं देखा यहाँ पे। हमारे यहाँ शिकार की इजाजत नहीं है। तुमने हमारे कायदों को तोड़ा है, जो कि एक जुर्म है। अच्छा ठीक है, मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप काफी नर्म दिल इंसान हैं। मुझे ये पसंद आया। मैं आपको एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। ओह ठीक है,
तो कैसे? तुम वापस अपनी सल्तनत जाओ और इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढो। मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ। ओह, ठीक है, बेहतर। मैं वापस जाता हूँ सल्तनत में और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढता हूँ। ठीक है, तुम जानते हो क्या सवाल है? ठीक है, अच्छा रुको, मैं तैयार हूँ। सवाल ये है, औरत क्या चाहती है? ओह ठीक है, अच्छा, तुम्हें मालूम करके वापस आना होगा। तुम्हारे पास 1 साल है, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा। ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरी सल्तनत में समझदार से समझदार आदमी के पास भी ये जवाब नहीं होगा। तुम कोशिश करो, 1 साल बाद मिलते हैं। तुम जाओ, आजाद हो, लेकिन भूल मत जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बादशाह ऑथर उसकी रियासत में लौटा और उसने सबसे यही सवाल पूछा। शहजादियां, मलकाएं, आलिम, दानिश्वर लोग, लेकिन कोई भी जवाब नहीं जानता था। फिर उसने अपनी एक खादिमा से पूछा, वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि घने जंगल में एक चुड़ैल रहती है, आप उससे क्यों नहीं पूछते? ये अजीब है और तुम मुझे उससे मिलने का मशवरा दे रही हो। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। किसी और ने भी आपको उसके बारे में बताया है क्या? तो आपको जरूर जाना चाहिए। वो इसके बदले में क्या लेगी? मैं आपको खबरदार कर दूं कि इसके लिए जो कीमत चुकानी होगी भारी होगी। अगर उसके पास जवाब होगा तो कीमत से कोई लेना देना नहीं है। अकेले हरगिज मत जाइए, सिपह सालार भी आपके साथ ले जाइए, वो जरा खतरनाक भी है। ओह ठीक है, तुम्हारे मशवरे के लिए शुक्रिया। उस वक्त बाद शब में बादशाह ऑथर ज़ईफ चुड़ैल से मिलने उसके घर गया। वो दरवाजा खटखटाने वाला था कि उसने कहा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी आपके पास अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। अगर आपको मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो मुझे बताओ जवाब। कीमत के लिए रजामंद हैं। तुम अपनी ख्वाहिश बताओ, जो मुझे देना होगा मैं दूंगा। ये करार कबूल किया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। आपके करीबी दोस्त ग्वेन से निकाह करना है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उससे शादी करोगी? सोच के ही मुझे अजीब सा लग रहा है। कीमत चुकाने का वादा किया था। तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? तुम बहुत बदसूरत हो। तुम्हारे मुंह में एक दांत है और तुम कुबड़ी भी हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। मैं अपने दोस्त को इस कुर्बानी के लिए कैसे कहूँ? उससे गुफ्तगू कीजिए, मेरे पास वापस जरूर आएंगे। बादशाह ऑथर के पास और कोई रास्ता बाकी नहीं था। ये कोई कुर्बानी नहीं है। तुम्हारा जीना मेरे लिए कीमती है, समझे? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। सच में तुम मेरे सच्चे अजीज हो। तुम्हारा एहसान रहेगा। ठीक है, उसे बताओ, आगे की तैयारी करो, शादी कल है। तुम अपना जवाब सोचो। बादशाह ऑथर वापस चुड़ैल के घर आए। मैं तैयार रहूंगी। कल शादी के बाद आपके इस सवाल का जवाब दूंगी। जब शादी के कागजात पर दस्तखत हो गए, तब उसने कहा, औरत की जिंदगी पर अपना हक हो। शादी में मौजूद लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो गया था कि हकीकत यही है कि अब बादशाह ऑथर हिफाजत से हैं। जब बादशाह मार्क्स ने ये दास्तान सुनी तो उन्होंने फौरन ही बादशाह ऑथर को अपनी कैद से आजाद कर दिया। शादी के दरमियान ही ग्वेन चुड़ैल के साथ मोहब्बत से पेश आया, लेकिन आने वाले मेहमान जो कि खानदान के फर्द थे, उनकी अपनी अलग अलग सोच थी। देखो तो वो कैसी खा रही है, सिर्फ उसकी तरफ देखकर ही मुझे शर्म आ रही है। उसने अपने हाथ से ही क्यों खाया है? छी, वो खाते हुए अपने मुंह से आवाज कर रही है। देखो, मैं तो ये ख्याल भी नहीं कर सकती। बेचारा ग्वेन, कितना खूबसूरत है वो सच में एक अच्छा दोस्त है। हाँ बिल्कुल है। और फिर बादशाह ऑथर ने ये तय किया कि नए शादीशुदा जोड़े को तन्हा छोड़ दिया जाए। ओह, तुम कौन हो तुम? मैं आपकी बेगम। मेरी बीवी? ये कैसा मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं ही हूँ, ज़ईफ चुड़ैल। आप मेरे साथ बहुत तमीज से पेश आए हैं, इसीलिए आधे वक्त में मैं खतरनाक शक्ल में रहूंगी।
और आधे वक्त में खूबसूरत। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं, लेकिन अब आपको ही ये तय करना है कि आप मेरी कौन सी शक्लो सूरत देखना चाहते हैं, रात में और दिन में, क्योंकि आप ही अब मुझे बताएंगे कि आपको मैं किस तरह से पसंद हूँ। ओह वाह, मैं हैरान हूँ। कोई रास्ता है जिसमें तुम सारे वक्त खूबसूरत रहो? आप तय कर लें और मुझे बताएं। अब आपको ही ये तय करना है, रात में और दिन में, आप मेरी कौन सी शक्लो सूरत देखना चाहते हैं। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। मैं कुछ घंटों में आपको मेरा फैसला बताता हूँ। जो आपकी ख्वाहिश। बेहतर। जब वो कमरे से बाहर गई तब ग्वेन महल के पास के बगीचे में क्या किया जाए ये तय करने के लिए टहलता रहा। क्या करूं मैं, क्या करूं? हर कोई तारीफ करे ऐसी खूबसूरत बीवी मुझे दिन में चाहिए ताकि मेरे दोस्त देख सकें, और रात को एक खूबसूरत लड़की, ना कि एक चुड़ैल। क्या मैं इसे उल्टा कर दूं? कुछ वक्त बाद ग्वेन ने फैसला कर लिया और वो सीधा महल के उस कमरे की जानिब गया जहाँ उसकी बेगम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। तो फिर क्या सोचा आपने? ओ बीवी, मैं तय नहीं कर पाया। शादी में जो लोग आए वो तुम्हारे बारे में अजीब बातें कर रहे थे। मैं अब उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। दिन में उनके सामने खूबसूरत दुल्हन की तरह दिखो, लेकिन फिर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तुम लोगों के बीच में खूबसूरत रहो, दूसरे भी तुम्हें अच्छी नजरों से देखें। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तो फिर बेहतर है, मैं खूबसूरत रहूंगी दिन भर और रात भर। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं करूँगा। लोग तो तुम्हें बाहरी खूबसूरती देखते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अंदर से खूबसूरत हो, जिसकी मैं बहुत कदर करता हूँ। ओ ग्वेन, मेरी यही ख्वाहिश थी कि आप ये कहें। अब मेरी सारी बुराइयां खत्म हो गईं, क्योंकि आपकी मोहब्बत और समझदारी ने हर बुराई को दूर कर दिया। चाहे मैं हसीन हूँ या नहीं, आपको कुछ मायने नहीं रखता, और मेरी खातिर आपने अपनी खुशियाँ छोड़ दी और हर हाल में मुझे कबूला। अब मैं हमेशा हसीन रहूंगी आपके लिए, और फिर वो बाकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई।